Hi guys, I hope I'm audible to everyone. I hope you are all excited for today. Okay, till the time the people are coming, just I want to ask you a very simple question is, what do you think that what we are going to learn in this internship? आप कुछ expectations लेके आए होंगे, I hope everyone, and I know that everyone wants to learn this thing. So please just let me know your expectations so that I can, just stand up on your expectations and I can cover up those things in this internship. Anyone, anything that you have in your mind that we will be discussing over here. Okay, just like the Gaurav is saying that trading strategies. Okay, yes, we will be doing some trading strategies. Okay, knowledge of market. Yes, we will be covering whole of the scope of the market in our knowledge basis. About stock market, yes, Chandni, we will be discussing about the stock market options. We will be talking about the options, how to write one, how to purchase one, how to sell options. Winning strategy, yes, Abhishek. I will actually, live trade in front of you so that you can estimate how the strategy is working. Skill need, yes, you will be equipped with all the skills. Technical knowledge as well as fundamental, we are going to cover up in this program. Basic to advanced, zero to zero loss strategy in option and base trading. Okay, Vinayaka, there is no such thing as zero loss strategy, but yes, what we can do is make a most profitable strategy in the market. Okay, okay, we will be discussing about the risk management principles as well, where we will learn that even if the strategy doesn't work, we are going to still make an intraday profit. Okay, being financially independent, yes, of course. Okay, so many expectations, and I'm very much excited to tell you that I thank you all to come here and listen to me. Okay, so we are going to start with the internship in just 2 minutes. Let the people come. People are still joining on. How to trade? Yes, we will be learning about how to trade, how to take examples. Like we will be talking about the backtesting as well. We will be talking about the live trading as well, so that you people can actually equip yourself. जब आप 15 दिन बाद अपने आप को यहाँ से जाते हुए देखेंगे, you will be equipped with whole knowledge how to trade Bank Nifty, what is Bank Nifty, how you're going to actually trade and make profits in it. No, Lavish, it will be starting from the basic onwards, but then we will be moving on to the advanced only. Okay, so there is no such thing as basic or advanced. You are going to be profitable. Yeah, but the whole understanding of the Bank Nifty will be given to you in this internship. That's for sure. Okay, I will just discuss about the schedule of the internship as well. It will be, yes, it will be for the whole 15 days, and we are also distributing the certificates for the completion of this internship as well. So let's just pause for 2 minutes and let the people join in so that other people can join in. I hope if your friends or anyone else also wants to join the internship, you can just send the link, and I'll accept them as well right now. No, it is not paid. It is for free of cost, Tushar. Okay, I'm not going to sell any course to you in this internship. Not like other webinars where you are called for free things and then you are sold something else. No, this is not going to be taken care of here. It's a proper internship where you will be given understanding of the Bank Nifty. You will be given regular assignments as to how you are actually going to trade in the real market, and assignments will be proper professional. Can you please cover NIS and portfolio management and technical analyst course? Okay, we will be discussing this in the other internship, but this total internship is all about Bank Nifty and options basically. So Bank Nifty future and options is the main topic for this internship, and I'm going to discuss that in very detail so that after this internship, people, you are going to give me some reviews about my internship, and I hope कि आप proper focus से यहाँ पे बैठे, and please have a notepad in your hand so that you can make notes, because I will be coming up with the slides as well. So उस slide में आपको notes भी देखने का notes भी बनाने का मौका मिलेगा, which will be helpful in the future as well. Okay. Any other questions till the people are coming, or otherwise I should start? Okay, people, let's start the internship program. Please take notes. Please be focused. And if you have any questions, okay, just put it in the message box. I will be answering them, each and every of the question. Okay, this is not something. If this is free of cost, there's no such thing that I'm not going to answer. I'm going to answer every one of your question. Okay, just people don't unmute yourself at any cost. And if you have any questions, just write it in the message box. Okay. Okay, so please go through this disclaimer once. Let's talk about the internship. Okay, so this is the internship for the 15 days. Okay, that's how we have marketed it, and that's how you have actually approached it. Okay, so total 15 days की internship होगी. There will be live classes where I will be teaching you a lot of concepts about the trading psychology, about the mindset, about the technicals and the fundamentals and the risk management, and every other thing that has to be covered within the Nifty option trading. Okay, so हम Nifty और Nifty Bank दोनों को यहाँ पे cover up करेंगे. Okay, and I will be providing you assignments and trading task as well. Okay, so हम आपको यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग का भी मौका देंगे. Okay, so that whatever concept you have learned, you can actually apply in the live market.
Okay, but once you have start learning, okay, so just wait for 2 to 3 lectures. After that, I think you will be able to start, trading on the demo markets. Please make sure nobody puts, if you are a beginner, nobody puts up the real money, okay, because you need first practice. आपको अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द रियल मनी, ओके. सो उसके बाद हम सीधा पोस्ट इंटर्नशिप आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग ऑल द क्लासेस. यस, 100% अटेंडेंस इज नेसेसरी फॉर एवरी वन ऑफ यू. सो नॉलेज भी एक इन्वेस्टमेंट होती है, और आप यहाँ पे नॉलेज लेने आए हैं. So we will be providing for the certificates, and if you perform well, you will also get to an opportunity to apply for the trading job as well. Yes. So let me give you a little bit of introduction about myself. I am Paras Goyal. I'm a startup consultant and a co-founder of the Noble Asset. Okay, I have my own intraday trading firm in the crypto investments and bank nifty intraday as well. So we also do some semi-automated trading. These are my qualifications. I'm an NISM certified research analyst. So yes, people, if you are going to get focused, so there are a lot of opportunities, with this internship. First of all, obviously you are going to lot of things, okay, and then also if you have learned well, if you have practiced well, then also you can apply for the job as well. Yeah, so it is day one of the internship. Okay, I hope all of you are excited. So what we are going to do, I'm just giving you a little bit startup. एक छोटा सा आपको intro दे रहा हूँ कि हम 15 दिन क्या करने वाले हैं. Okay, so the whole internship is this perspective about, in the day one we will discuss about the whole market. Okay, like what are the primary and the secondary markets, how do we actually invest in markets via different things. Okay, and then a lot of other things which we are going to discuss in the day one. Day two we are going to cover the fundamentals. Okay, so the whole funda about investing or trading, like if you want to be an intraday trader or you want to be a swing trader in this internship, you will be covered with all the concepts. हम यहाँ पे intraday trading strategies भी discuss करेंगे, हम यहाँ पे swing trading strategies भी discuss करेंगे, and then we will be moving forward with the demo account and live trading as well. How many people are beginner over here? Please just let me know. And if you have any experience, just let me know if you have experience as well, sir. And if you have experience, please write me down the number of experience. Okay, 6 months experience. Many of the people are beginner over here. 1 month. Okay, that's good. So I hope that experience 2 years. That's great. Okay, beginner. Okay, so most people are beginner over here. Okay, so from beginning to advanced. Okay, so I think that there is a demarcation that people have made into their mind. एक छोटी सी एक उन्होंने डिफरेंस बना रखा है कि देर इज समथिंग नोन एज बेसिक लैंग्वेज, देन देर बेसिक कोर्स, और देर इज समथिंग एडवांस कोर्स इन द ऑप्शंस. ओके, सो देर इज ओनली नॉलेज अबाउट द ऑप्शंस. ओके, देर इज नो सच थिंग एज बेसिक, देर इज नो सच थिंग एज एडवांस. तो इफ यू एक्चुअली वांट टू गेट इनटू ट्रेडिंग, ओके, जो भी यहाँ पे लोग आए हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं. आप ये समझिए, जब भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओके, आप अपना पैसा दाव पे लगा रहे हैं. यू आर रिस्किंग योर मनी टू गेट सम प्रॉफिट्स. Okay, I hope this is clear to you, that if you are going to trade or invest into the market, okay, so you people are actually risking your money. Okay, if I am entering into trade, for example, मुझे मेरा एक perception है कि for example let's say कि Reliance जो है वो एक हफ्ते बाद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है. So I will buy some shares of Reliance to get that profit, right? But when I buy that Reliance, I'm actually risking some amount of my money. Yes or no? Yes. So everybody is risking their money. Tell me, do you really think that you can risk your money in half knowledge? Like for example, if I don't know about the stock market, or if I know about if I'm having some half knowledge about the stock market, how much do you think my risk like it has increased or it has decreased because of my knowledge? क्या मेरा जो रिस्क है वो नॉलेज के साथ इंक्रीज होगा या फिर वो घटेगा? रिस्क जो मेरा है वो नॉलेज के साथ क्या कोरिलेशन रखता है? Either when my knowledge is increasing, whether my risk will increase or whether my risk will decrease. Please let me know, everyone. So most of the people agree with me that with the increase of knowledge, my risk will decrease, right? Everyone. Okay, so some people are even saying increase. So please let me know a reason कि अगर हमारी knowledge increase होती है, अगर हम अच्छे ट्रेड ले सकते हैं, अगर हम एक knowledgeable ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या हमारा रिस्क जो है वो इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा? अगर मेरे पास मेरा एक परसेप्शन था कि रिलायंस का जो शेयर है वो अगले हफ्ते बढ़ेगा, बट वो परसेप्शन किसी फैक्टर की वजह से बना होगा ना, राइट? या तो मैंने उसकी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, या उसका प्रॉफिट जो है इस बार का अच्छा आया होगा, क्वार्टर बैलेंस शीट अच्छी आई होगी, या पी रेशियो जो है उसका अच्छा है, या देर इज सम फैक्टर, राइट, बिहाइंड माय परसेप्शन. ठीक है, सिर्फ चार्ट्स को देख के मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. या सो बेसिकली व्हाट माय पॉइंट इज दैट व्हेन योर नॉलेज इंक्रीजेस, योर रिस्क डिक्रीजेस, राइट? तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर हुआ होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट डूइंग बाय यू ऑल ऑफ पीपल. आप यहाँ पे नॉलेज लेने आए हैं, एंड नॉलेज विल गोइंग टू डिक्रीज योर रिस्क. एंड इफ द रिस्क इज डिक्रीजिंग, क्या यहाँ पे हमारे प्रॉफिट्स पे डिक्रीज होते हैं?
कहते हैं ना, एक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता है, हर अपने बिजनेस की भाषा में सुना होगा, जितना आप रिस्क लोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट? बट नॉलेज के साथ जब हम नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, हम कमती रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है? और हम यही चीज आज प्रूव भी करेंगे खुद को भी, और हम सब ये चीज लाइव होते हुए देखेंगे इन 15 डेज में कि किस तरह से जब मैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या मेरे जो रिस्क है वो डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? एंड विद दैट डिक्रीज ऑफ रिस्क आपकी एक्चुअली में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, okay? There'll be low risk and high profitability because you will have the equipped knowledge with you. Okay, people, so let's start with the basic concept. What is the difference between trading and investing? So what do you people think that there is a difference between trading and investing? Okay, so most of people are saying very good. जो trading होती है, ठीक है ना? So when we are trading actually, so I'll be giving some examples as well, and if you want to note down the slides as well, you can just note down in your notepad as well. Some people like to take some screenshots, but I believe अगर आप खुद अपने हाथ से लिखेंगे तो आपके retention power जो है वो ज्यादा होगी, okay? So just make some notes along with me. So जो trading होती है, ठीक है ना, ये short term के लिए होती है. Very much important concept that you have to understand that what is the difference between the trading and investing part. जो ट्रेडिंग होती है उसमें सिर्फ टाइम पीरियड का शॉर्ट होता है, जो टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है हमारा. देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं, जो हमारा रिस्क है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? मान लीजिए मेरा 10,000 रुपए का पोर्टफोलियो है, ठीक है? मेरा 10,000 रुपए का पोर्टफोलियो है, चाहे मैं इसे ट्रेडिंग में लगाऊं या मैं इसे इन्वेस्टिंग में लगाऊं, दोनों में रिस्क जो है मेरा सेम रहेगा. यस और नो? Yes or no? Money wise, my risk will be same, right or no? Okay, some people are saying no, some people are saying yes. Okay, let me just say you. Okay, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक 1 वीक लेटर, आफ्टर 1 वीक जो मेरा रिलायंस का शेयर है वो अपसाइड जाएगा, ठीक है? लेट्स से इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, पीपल जस्ट डू नॉट स्टार्ट बाइंग रिलायंस शेयर, ओके? हाँ, ओके, सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. 1 वीक आफ्टर मेरा परसेप्शन है कि लेट्स से रिलायंस जो कंपनी है, लेट्स से रिलायंस बी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, उसका शेयर प्राइस जो अपसाइड जाएगा. So basically, after 1 week, I'm actually thinking that my Reliance will price will go up. And if it is going up, should I buy or should I sell? Just a simple answer I want to know from you people, that if the price is going upside, whether I should buy it or I should sell it. You should buy it, right? अगर मेरा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो मैं बाइंग करूंगा, राइट? अब ये जो बाइंग या सेलिंग होगी अपनी क्षमता के हिसाब से होगी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरी जो पॉकेट मनी है वो 10,000 रुपये, ठीक है? या किसी की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है, या किसी की इनकम 10 लाख रुपए है. तो हर जो एक पर्सन है, ठीक है ना, वो अपनी एक अफोर्डेबिलिटी रेट के हिसाब से रिस्क लेगा, राइट? Somebody can afford to take a risk of 10,000. Somebody of you might have a risk appetite of 1 lakh rupees, and some of you might have a risk appetite of 10 lakh rupees. ठीक है? तो जितना भी आपका रिस्क एपेटाइट है, आप उतना ही इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट? सो यहाँ पे जो मेरा मॉनेटरी रिस्क है वो यहाँ पे सेम है, ठीक है? किसी का 10,000 रुपए है तो वो 10,000 पे ही रिस्क पे लगाएगा, किसी का लाख है तो वो लाख पे रिस्क पे लगाएगा. तो यहाँ पे जो मेरा मॉनेटरी रिस्क है वो सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे जो फर्क आता है वो है टाइम फ्रेम का, ठीक है? टाइम फ्रेम का रिस्क है सारा, सॉरी डिफरेंस है सारा. टाइम फ्रेम यानी कि अगर हम एक हफ्ता या एक 1 डे और 1 मंथ की जो हम ट्रेडिंग करते हैं, या फिर हम जो प्राइसेस की स्पेकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हम खरीद लेते हैं, अगर प्राइस घट रहा है तो हम सेल कर देते हैं, ठीक है? तो उसे ट्रेडिंग कहते हैं. जब हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए जब भी हम अपना पैसा रिस्क पे लगाते हैं कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है. पर अगर हम कुछ लंबे समय के लिए कुछ पैसा लगाते हैं, लेट्स से 6 मंथ्स, लेट्स से 2 इयर्स, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने आपने जोमेटो के शेयर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना? जोमेटो ने अपना आईपीओ रिलीज करा था, ओके? yes or no people, how many people are actually aware of the share Zomato ने अपना शेयर जो है अपना आईपीओ रिलीज किया था, जिसकी वजह से उन्होंने पब्लिक से इशू उठाया था. many of you are aware, yes or no? Okay, I am speaking in English and Hindi both because I think many of our users are comfortable in English and Hindi as well. So just try to understand my language in the most possible way, okay? Because there is a mixed crowd over here. Okay, some people are very much comfortable in Hindi and while very much comfortable in English. So I'll be talking in both the languages so that आप लोगों को समझ में आए. So ये जो जोमेटो में अगर मैं जो कंपनी है, ठीक है ना, अब आपको क्या लगता है कि 2 साल बाद या 5 साल बाद जो जोमेटो का जो शेयर प्राइस होगा वो अपसाइड होगा या डाउनसाइड होगा? व्हाट डू यू थिंक एज एज एन इन्वेस्टर? अपसाइड होगा, कुछ लोग बोलेंगे अपसाइड होगा, कुछ लोग बोलेंगे डाउनसाइड होगा, ठीक है ना? मोस्ट पीपल आर सेइंग अपसाइड, ओके? सो आई एम लुकिंग फॉर अ 5 ईयर होराइजन.
प्लीज अंडरस्टैंड पीपल दैट द टाइम फ्रेम, जहां पे जो मैं समय की बात कर रहा हूँ वो 5 साल की है, ठीक है ना। मैं 5 साल बाद यानी कि आफ्टर 5 years आई एम आस्किंग यू वेदर द प्राइस विल गो अप और डाउन. So most of you people have a guessing power that this is going to upside. I know that anything is possible, Shubham, but I am asking you to guess, okay, on your knowledge, on the basis of your perception of business, जो भी आपको बिजनेस के बारे में अभी तक समझ में आता है, क्या लगता है आपको कि जो जोमेटो जैसी कंपनी है वो अपसाइड जाएगी या डाउनसाइड जाएगी? So when I was saying that I am betting cloud kitchen so upside, yes. So these are the things that you are. There are some factors in your mind, okay, जिसमें most of the 50% से ज्यादा लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे जो है मेरा जोमेटो अपसाइड जाएगा और 50% से कम लोगों को लग रहा है कि मेरा जो जोमेटो है वो डाउनसाइड जाएगा. बट यहाँ पे जो मैंने टाइम फ्रेम लिया है वो 5 years के लिए है. Okay, so people who are thinking that that the share price is going to go up, are you going to buy or sell? Those people who are telling me right now that the price is going to go up, just tell me whether you are going to buy the share or sell the share. सही है, आप लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, सब लोग बाय कह रहे हैं. जिन लोगों को लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, जिन लोगों को लगता है कि प्राइस नीचे जा सकता है, दे आर नॉट फिक्स्ड अबाउट दिस. बट ठीक है, हम इस चीज की बात करना चाह रहे हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है. ठीक है, हमें जोमेटो पे कंसंट्रेट नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है. तो यहाँ पे जब आप अपना जो एक परसेप्शन लेके चल रहे हैं कि मेरा जो जोमेटो है वो अपसाइड जाएगा, तो यहाँ पे भी मैं अगर अपसाइड जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा, तो बाइंग के लिए मेरे पास रिस्क लगाना होगा. सो सिमिलर कंडीशन विल फॉलो. अगर किसी के पास 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का शेयर खरीदेगा. कोई बंदा लाख रुपए का खरीदेगा और कोई बंदा 1 करोड़ के भी खरीदेगा, राइट. सो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में ये आप समझ लीजिए, जो मॉनेटरी रिस्क होता है वो मेरा सेम, ठीक है ना. कई लोग बोल रहे हैं कि जो रिस्क होता है इन्वेस्टिंग में वो कम होता है. अच्छा, जस्ट टेल मी कि कोरोना के बाद आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिंग में रिस्क कम है या ज्यादा है? ठीक है, ट्रेडिंग से ज्यादा है या कम है? क्योंकि हम ट्रेडिंग में बोलते थे कि प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा अप डाउन होते हैं, तो ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा है. क्या जब से वोलेटिलिटी बढ़ी है मार्केट में बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड अदर स्टफ दैट हैज बीन हैपनिंग इन द मार्केट्स, क्या आपको लगता है इन्वेस्टिंग अब रिस्की नहीं है? हाउ मेनी पीपल ऑफ यू थिंक दैट द इन्वेस्टिंग इज नॉट रिस्की? सी, कोरोना के बाद काफी लोगों के पोर्टफोलियो 50% वैल्यू पे आ गए थे, राइट. आई नो वो वापसी ऊपर आ गया है. सिमिलरली ट्रेडिंग में भी तो ऐसे ही होता है कि प्राइसेस जो है वो नीचे भी आते हैं, अपसाइड भी आते हैं, ठीक है. सो जितना रिस्क जो है, बेसिकली रिस्क जो है वो मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, बिकॉज ऑब्वियसली द वोलेटिलिटी इज लेस इन लॉन्ग टर्म. बट आज की डेट में जितना वॉलेटाइल जितना हमारा मार्केट है ना, उस हिसाब से इन्वेस्टिंग में भी पूरा पूरा रिस्क है, ठीक है. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टाइम फ्रेम, देयर इज अ सर्टेन नीड ऑफ एनालिसिस इन द सिक्योरिटी टू टेक योर डिसीजंस. तो आपको, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ अपना एनालिसिस रखना है, आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा. और उस एनालिसिस के लिए आपको जो है एजुकेशन की जरूरत है. और वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कब हम ये समझेंगे कि शेयर को या बैंक निफ्टी को हम रिलेटेड यहाँ पे समझने वाले हैं बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड. तो कब हम बैंकिंग इंडस्ट्री में बाइंग करेंगे या कब हम बैंकिंग इंडस्ट्री में सेलिंग करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि ये सेम प्रिंसिपल्स कहीं और फॉलो अप नहीं हो सकते, हम कुछ जनरलाइजेशन बातें भी करेंगे. सो आई होप दैट यू आर नॉट जस्ट लाइक कि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम आ रही हो. तो जहां जहां पे भी आपको क्वेश्चन आएगा आगे जाके, सो प्लीज डू आस्क योर क्वेश्चंस, ओके. सो हम ये समझते हैं कि ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, सर हमें तो एनालिसिस करना ही पड़ेगा. उस एनालिसिस के बेसिस पे हम ये डिसीजन निकालेंगे वेदर द प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप और गोइंग टू गो डाउन. इफ द प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप, आई एम गोइंग टू बाय. Simple. If the prices are going to go down, I'm going to sell. Okay, the security. So it doesn't matter whether I'm investing or I'm trading. It's all, the difference is all about the time frame. However, the risk appetite or the risk thing is the same, and I should be equipped with the full knowledge. मुझे proper knowledge होनी चाहिए जहां से मैं अपना risk को mitigate कर सकूं. Okay. So अब हम टाइप्स ऑफ एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि हमने ये तो समझा कि सर जो हम चाहे ट्रेडिंग करें चाहे हम इन्वेस्टमेंट करें, आई नीड टू डू माय एनालिसिस. ओके, आई हैव टू हैव माय एनालिसिस. बट ये एनालिसिस किस तरह से होता है? हाउ डू आई डू माय एनालिसिस? सो फॉर अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, his sole weapon behind his armory is to on the basis of taking a decision is his or her own analysis. तो आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो आपका जो मेन फ्रेम होता है वो आपका एनालिसिस होता है, जो आपको बताता है कि या तो प्राइस जो है वो अपसाइड जाएगा या तो प्राइस जो है वो डाउन साइड जाएगा. ओके. Investment means trust on company's management. No, as such, it is one of the पहलू, ठीक है ना. सांकी मैं बोलूंगा कि एक बहुत छोटा सा ये फ्रेमवर्क है कि हम कंपनी के मैनेजमेंट पे करते हैं. हम बहुत सारी चीजों पे बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके अपना एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना. अब आप ये समझ लीजिए सारे के सारे कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? हमें फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत होती है, ठीक है. हम अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ हमारा ज्यादा स्कोप है, बिकॉज अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में जो हमारा फर्क था वो टाइम फ्रेम का था. सो जिन लोगों के पास ज्यादा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, वो ऑब्वियसली ट्रेडिंग करेंगे. जिन लोगों के पास कम टाइम है, जो लोग जॉब कर रहे हैं या अदर अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे.
ठीक है ना। बट हमारा फ्रेमवर्क सही रहेगा कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि हम अपने जो रिस्क अमाउंट है उसको लगा रहे हैं 6 मंथ्स प्लस के लिए या 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, ठीक है ना, तो उसमें मैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इज कॉजिंग द चेंज इन द प्राइस। तो इंटरनल कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कंपनी का मैनेजमेंट, जैसे हमारे कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कंपनी का कंपटीशन कौन है, ठीक है, या कंपनी जो है बेसिकली जो कस्टमर का रिव्यू है कंपनी के लिए कैसा है, या प्रेफरेंस या ट्रेंड जो है वो कंपनी के हित में है या नहीं है। हम बहुत सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, और उसके बेसिस पे हम ये समझते हैं कि जो हमारी प्राइस है वो अपसाइड जाएगा नहीं जाएगा। लेट्स एग्जांपल ऑफ जोमेटो। अगर मैं जोमेटो की बात करूं, तो अभी आप लोगों ने बहुत लोगों ने बताया था कि जोमेटो जो है अपसाइड भी जा सकता है और डाउनसाइड भी जा सकता है, और आपने इस डिसीजन को लेने के लिए, इस सोच को, फैक्टर को चूज करने के लिए कि प्राइस जो है अपसाइड जाएगा डाउनसाइड जाएगा, कुछ तो अपने फैक्टर्स को दिमाग में यूज किया होगा। जैसे कई लोगों ने बोला कि मुझे कि यहाँ पे जो हमारी क्लाउड किचन है उसमें मुझे देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड इट विल गो अपसाइड इन द कमिंग इन द कमिंग टाइम पीरियड। ओके, सिमिलरली जो जोमेटो है उसका जो आईटी है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, दैट इज वेरी मच यू कैन से इट इज अ वेरी गुड इन द फ्यूचर। तो जो कंपनीज आज की डेट में अपने आप को आईटी रिलेटेड इंप्रूव नहीं कर रही हैं, ठीक है ना, उन कंपनीज का फ्यूचर आपको क्या लगता है कि अपसाइड होगा डाउनसाइड होगा? जो कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर रही है, ठीक है ना, या अपने बिजनेसेस को अपग्रेड नहीं कर रही है, उनका आपको क्या लगता है फ्यूचर अपसाइड होगा या डाउनसाइड होगा? प्लीज पीपल स्टार्ट आंसरिंग। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, सो दैट अब यहाँ पे आप प्रॉपरली एक नॉलेज ले रहे हैं। सो आई बिलीव कि अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटा मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज अच्छे से करिए। ओके, सो इट शुड बी एन इंटरेक्टिव वन, आई शुड नॉट बी द ओनली वन स्पीकिंग। ओके, सो अगर आप टेक अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो बहुत लोगों ने बोला हमारा जो शेयर प्राइस है वो डाउनसाइड जाएगा। ओके, एंड ये जो टेक अपग्रेडेशन है, टेक्नोलॉजी के बारे में हमने समझा, ठीक है ना, ये कहाँ पे आता है? ये हमारा एक इंटरनल फैक्टर है कंपनी का, और अगर ये इंटरनल फैक्टर है तो ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में फॉल करेगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान देना होता है। सिमिलरली अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, जहां पे मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में, जो यानी कि 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर या एक विद इन द डे, सेम डे में अपनी सिक्योरिटी को बाय और सेल करता हूं, अपना सौदा वहीं की वहीं काट देता हूं, ठीक है ना, तो मैं उसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, क्योंकि अगर आपने चार्ट देखे होंगे, जब आगे जाके लाइव में देखेंगे, प्राइसेस कुछ ऐसे मूव करते हैं, तो हम कुछ लोस पे बाय करते हैं, कुछ हाईस पे हम सेल करते हैं, ठीक है ना, वो सारा पार्ट, ये जो हमें बताता है कब प्राइस जो अपना लो लगाएगा, कब प्राइस जो अपने हाई पे रहेगा, ये सारा पार्ट कौन बताता है? हमें टेक्निकल एनालिसिस बताता है। ठीक है, यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस का ज्यादा यूज करते हैं, हम प्राइस चार्ट्स का यूज करेंगे, हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके चार्ट्स को, कैंडलस्टिक चार्ट्स को यूज करेंगे, हम अपने प्राइस एक्शन टेक्निक्स को यूज करेंगे टू नो व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल द सिक्योरिटी। ओके, सो हम टेक्निकल, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, विद इन द वीक, विद इन द डे, हम जब सिक्योरिटीज को बाय और सेल करते हैं, तो हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क मी। ओके, सो आई होप यहाँ पे सब लिख रहे हैं, आपको समझ में आ चुका है। एक छोटा सा डाउट है कि हमें फंडामेंटल यूज करना चाहिए, टेक्निकल यूज करना चाहिए। ये मैं आपको तभी बता रहा था कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि आपके पास टाइम अच्छा है, आप कुछ और नहीं कर रहे, आप अपना स्टॉक मार्केट पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। जब आप कोई और जॉब नहीं कर रहे हैं या आप अपना कोई और बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना ट्रेडिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में हमें मिनट टू मिनट भी एनालिसिस करना पड़ता है, कई बार हमें आर्ली बेसिस पे भी एनालिसिस करना पड़ता है। तो अगर आपके पास टाइम पे, अपने पास खुद का टाइम ज्यादा है, तो आप ट्रेडिंग में ज्यादा फोकस कर सकते हैं और आप टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास टाइम कम है, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है, हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ फंडामेंटल एनालिसिस का ध्यान रखेंगे और कुछ टेक्निकल एनालिसिस का ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम दोनों को यूज करेंगे, बट अगर इन्वेस्टमेंट में हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, फंडामेंटल का ज्यादा इस्तेमाल होगा, और ट्रेडिंग में टेक्निकल का ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे हमने जोमेटो की बात करी, तो हमने यहाँ पे प्राइस चार्ट खोल के नहीं देखे सीधा कि जो प्राइस है वो जोमेटो का ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, बिकॉज हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, जोमेटो एक नई कंपनी है। इफ आई एम रिस्किंग माई मनी इन जोमेटो, आई विल बी डूइंग इट फॉर लॉन्ग टर्म एंड नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। हाउएवर अगर मैं रिलायंस की बात करूं या फिर कोई भी ब्लू चिप कंपनी की बात करूं, टाटास की बात करूं या टाटा मोटर्स, आपने देखा होगा कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है आज की डेट में प्राइसेस जो है, तो उसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस का ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज उनके जो फंडामेंटल्स हैं वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है एंड मुझे टेक्निकल्स पे उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा।
ओके, द न्यूज कम्स इन द फंडामेंटल पार्ट्स आल्सो। ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं ऐसा नहीं है हम फंडामेंटल को बिल्कुल भूल जाएंगे। ओके, सो देयर आर मेनी ट्रेडर्स इन द मार्केट विच से आपको फंडामेंटल पे बिल्कुल फोकस करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली न्यूज एनालिसिस जो होता है कंपनी का, वो भी फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। तो सुबह जब आप अपना सीएनबीसी खोलते हैं या कोई भी बिजनेस न्यूज खोलते हैं शेयर्स का प्राइसेस अप डाउन देखने के लिए, तो आपको न्यूज वहां पे दिख रही होती है कि कंपनी में ये चेंजेस आए हैं, या कंपनी के जो किस कंपनी का आज का रिजल्ट है, या कौन सी कंपनी में कोई नया डिसीजन लिया गया है। ठीक है ना, तो दिस ये भी जो न्यूज़ होती हैं सारी की सारी, दे कम्स इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से हम वोलेटिलिटी को जान पाते हैं। ये चीजें हम आगे डिटेल में और समझते चले जाएंगे किस तरह से हम फंडामेंटल और टेक्निकल को इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली अब थोड़ा सा फंडामेंटल समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, सो इमेजिन यू हैव डिसाइडेड टू बाय न्यू फोन। आपने एक अभी डिसीजन लिया कि आपकी कहीं से अच्छा सा प्रॉफिट बने, आपकी सैलरी आई है एंड यू वांट टू बाय अ न्यू फोन। ठीक है, सो व्हाट वुड बी द प्रोसेस ऑफ योर सिलेक्शन। अब आप रेंज देखेंगे फोन की, तो बहुत सारी रेंज है मार्केट में कि मैं आईफोन भी चूज कर सकता हूँ, मैं एंड्रॉइड भी कर सकता हूँ। एंड देन एंड्रॉइड के अंदर अंदर देयर आर सो मेनी कंपनीज, वन प्लस भी आती है, देयर इज सैमसंग। ठीक है, देन देयर आर फर्दर मोर कंपनीज। ठीक है, फॉर द प्राइस रेंज डिसाइडेड, तो पहले आप अपना क्या करते हैं, आप अपना एक बजट सेट करेंगे कि भाई जो मेरा बजट है वो या तो 1 लाख रुपीज का है, या फिर मेरा जो बजट है वो 10,000 का है। ठीक है, या मेरा जो बजट है वो 50,000 का है फोन का। तो पहले आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपना बजट सेट करते हैं। यस और नो, यस और नो पीपल, पहले आप अपना बजट सेट करेंगे। ठीक है ना, व्हाट हाउ मच कैन यू एक्चुअली अफोर्ड टू बाय अ न्यू फोन। उसके बाद आप क्या करते हैं, ठीक है ना, फिर अपने अपने ब्रांड्स को सेट करते हैं। ठीक है, आपके ब्रांड्स कौन कौन से जो आपका फेवरेट है, आपको वन प्लस अच्छा लगता है आप वन प्लस लेंगे, या आपको देर इज ओप्पो का कोई फीचर अच्छा लगता है तो ओप्पो लेंगे। ठीक है, तो आप उसके बाद वेरियस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बैटरी लाइफ कैसी है, आपका क्या जो कैमरा है उसका मेगापिक्सल कितने का है। सो सम पीपल हु आर एक्चुअली मोर ऑन टॉकिंग ऑन फोन, दे लुक फॉर द बैटरी लाइफ। जिन लोगों को कॉलिंग बहुत ज्यादा करनी होती है वो बैटरी लाइफ देखते हैं। ठीक है, जिन लोगों को वीडियोस वगैरह ज्यादा बनानी होती है या पिक्चर ज्यादा यूज करनी होती है वो मेगापिक्सल देखते हैं कैमरे का। Similarly, when you visit the financial markets, okay, for purchasing some of the financial instruments like equities, debentures, currencies, crypto, अब आप फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको पता है कितनी सारी हमारे पास सिक्योरिटीज है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, इक्विटी में ही हमारे पास 20 से 30 हजार लिस्टेड कंपनीज हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। देन कम करेंसीज में मैं इन्वेस्टिंग, और हम जो करेंसीज के रेट फ्लक्चुएट होते हैं उसमें हम यूरो यूएसडी बाय करते हैं, या फिर हम डिपेंडिंग अपॉन द करेंसीज की किस करेंसी अच्छा करने वाली है इन द कमिंग डेज, हम करेंसी बाय करते हैं। सिमिलरली अगर आप क्रिप्टो का नाम, अब आपने क्रिप्टो के बारे में तो आप जानते ही होंगे किस तरह से बीटीसी जो है वो 1 लाख से सीधा 51 लाख के आसपास आ गया था। ठीक है, सो इन्वेस्टिंग अगर हम करने जाएं तो बहुत सारी सिक्योरिटीज है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए टू अर्न मनी और कैपिटल। देर आर मोर देन 10,000 पॉपुलर सिक्योरिटीज टू बाय। अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें उसमें से 10,000 पॉपुलर है। So the fundamental analysis gives you a basic understanding of the structure of the business of the companies whose share you are thinking to buy. तो जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसमें हम जो कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझते हैं, हम कंपनी के बिजनेस के बारे में समझते हैं, हम कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, कंपनी अपने सेक्टर में कैसे परफॉर्म कर रहा है, या कंपनी का कौन सा कंपटीशन है, जैसे हमने डिस्कस किया था, हम उन सब चीजों के बारे में समझते हैं। और आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग we come to a conclusion this yes this for example let's say Zomato और कोई भी और आप कंपनी बता सकते हैं, let's say ITC, ठीक है, let's say Reliance, कि अब मैंने डिसाइड करा है कि इन सारी चीजों को पढ़ने के बारे में, ठीक है, इस सारी चीजों को पढ़ने के बाद इनका इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे हैं, मैंने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाया है कि जो मेरा प्राइस है वो तो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। Okay, so in the future, if ITC is not doing well, let's say it's a hypothetical example. If ITC is not doing well, what do you think? What will happen in the future as well? Okay, if the ITC performance is not doing well, what do you think whether the prices of ITC are going to increase or decrease? क्या ITC के जो prices हैं ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे अगर ITC मेरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है? Decrease. So many people are saying that decrease. Okay, so now you're thinking that if ITC is not performing well, then the prices are going to go decrease. Yes or no? तो अब आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे प्राइस चार्ट खोलने की देखने की जरूरत पड़ी कि जो प्राइस चार्ट है वो मेरा बताएगा कि यहाँ से जो मेरा प्राइस है वो नीचे जाएगा या अपसाइड जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की कोई जरूरत पड़ी नहीं, बिकॉज आप जब लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए देख रहे हैं आप उसमें फंडामेंटल्स को ज्यादा देखेंगे। ठीक है ना, कि जो प्राइस का जो फंडामेंटल्स है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम बैंक निफ्टी या निफ्टी की बात करते हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी और जो निफ्टी है वो कब ऊपर जाएगा या कब नीचे जाएगा। जैसे आप अभी आंसर कर रहे हैं वैसे ही तब भी आप आंसर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस इन बैंक निफ्टी वेदर द बैंक निफ्टी इज गोइंग टू गो अप और डाउन। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, दे वांट टू लर्न, बट लर्न इससे पहले आप ये समझे कि हमें खरीदना है या बेचना है वो सबसे लास्ट डिसीजन होता है। ओके, सो द लास्ट डिसीजन इज आई एम आस्किंग वेदर टू बाय और सेल। ठीक है, बहुत मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं जो बताते हैं कि सर आप बस बता दो बाय करना है सेल करना है।
ठीक है ना, उससे ज्यादा हमें नहीं पता, हमें बस ये बताओ कि बाय करना, सेल करना और कब कब बेचना है, कब खरीदना। ओके, बट इफ यू आर एक्चुअली यू नो लुकिंग फॉर अ बिकमिंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है ना, आप टिप्स पे काम नहीं करना चाहते, आई नो दैट मेनी पीपल सफर लॉसेस फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उस जो फैक्टर्स हैं, जो आपके लॉसेस के फैक्टर्स हैं, वो आपकी नॉलेज ही होती है। जो अगर आपकी कंपनी नॉलेज है तो आपके जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाएंगे और आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ अपने रिस्क को कम करेंगे, ठीक है। सो हम जो अपने अभी आने वाले क्लासेस में और अपने आने वाली स्लाइड में हम ये सब समझेंगे कि क्या बैंक निफ्टी में फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमें ये तो समझिए सर, अगर कंपनी के बारे में पढ़ना है हमें, तो हम कंपनी की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कंपनी के हम सेक्टर चीजें के बारे में जान सकते हैं। बट बैंक निफ्टी का क्या, बैंक निफ्टी खुद में एक इंडेक्स है, राइट। सो हाउ विल आई नो कि वेदर द बैंक निफ्टी how will it go up or down? So there's a question like सिक्योरिटी और बैंक निफ्टी के फंडामेंटल एनालिसिस में डिफरेंस होता है, यस डिफरेंस होता है, बट बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। हम पहले ये भी समझेंगे बैंक निफ्टी होता क्या है, बैंक निफ्टी से कॉम्पोजिशन ऑफ द बैंक, ओके, सारे जो बड़े बैंक्स हैं उनका एक कॉम्पोजिशन करके बैंक निफ्टी निकाला गया, बट उनको पढ़ने का तरीका अलग है। सी फंडामेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो सब सेम होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कंपनीज का प्रॉफिट्स है, ठीक है ना, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, हम कंपनी की परफॉर्मेंस को देखेंगे, हम कंपनीज के मैनेजमेंट को देखेंगे, ठीक है, ये सारे फैक्टर सेम रहते हैं, बट क्या इनको पढ़ने का तरीका सेम रहता है हर किसी में? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्सएप जो है, ठीक है ना, व्हाट्सएप एक कंपनी आपको पता ही है जिसको आप यूज भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप जो कंपनी है, ठीक है ना, उसके आप फंडामेंटल्स में मैनेजमेंट ज्यादा देखेंगे, या फिर आप जोमेटो जो कंपनी है उसके फंडामेंटल्स में मैनेजमेंट को ज्यादा देखेंगे? जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट आंसर, जिसको लगता है कि मैं इसका आंसर कर सकता हूँ कि व्हाट्सएप एक कंपनी है, मैं उसके मैनेजमेंट के बारे में देखूंगा, ठीक है ना, और जोमेटो एक कंपनी है, मैं उसके मैनेजमेंट के बारे में देखूंगा, क्या मेरा इन दोनों कंपनीज को मैनेजमेंट को समझने का तरीका एक ही होगा? आई वॉन्ट टू नो दिस थिंग। जो भी मेरी ये दो कंपनीज हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की हैं, जैसे आप देख सकते हो, एक जो है आईटी सेक्टर की कंपनी है, एक जो है बिल्कुल फूड सेक्टर की कंपनी है, क्या इन दोनों की मैनेजमेंट या इन दोनों की परफॉर्मेंस समझने का तरीका मेरा एक ही होगा? ठीक है, तो बहुत लोग ना कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि आपके दिमाग में ये तो चीज क्लियर है कि जब हम किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस को या फंडामेंटल फैक्टर को स्टडी करेंगे, तो जब हम बैंक निफ्टी के बारे में स्टडी करेंगे तो हम उससे रिलेटेड मेथड को स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम बैंक निफ्टी के फंडामेंटल्स को समझते हैं और किस तरह से हम बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स को समझते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा सबका, यस और नो? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो प्लीज आप यू कैन से दैट देयर इज नो डाउट, वी कैन मूव फॉरवर्ड। आकांक्षा, अभी हम इस चीज पे नहीं पहुंचे कि जो हम अगर स्टॉक को ट्रेड करेंगे या इंडेक्स को ट्रेड करेंगे, उन दोनों से क्या फायदा जिसमें ज्यादा होगा। अभी आप मुझे यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक आपको सब समझ में आया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। So कुछ क्वेश्चंस जो है, आई नो पीपल दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बट अगर आपके मन में थोड़े जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो भी आगे आने वाली क्लासेस में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो अब हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझ लिया कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। अब हम समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हम जब भी कोई सिक्योरिटी बाय या सेल करते हैं, हम उसमें एनालिसिस करते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये पता करते हैं जो मेरा प्राइस है वो अपसाइड जाएगा डाउन साइड जाएगा, राइट। सो हमने पहले ये समझा कि एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो टूल्स हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप एक फ्रेमवर्क बनाते रहिए माइंड में कि जब भी मुझे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बाय या सेल करना है, ठीक है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं साइड में कहीं, ठीक है, उसके लिए मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे बाय या सेल समझने के लिए कि मुझे सिक्योरिटी को बाय या सेल करना है, उसके लिए मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस मुझे क्या बताएगा कि प्राइस जो है वो या तो अपसाइड जाएगा डाउन साइड जाएगा, बट इस एनालिसिस को करने के लिए मेरे पास दो टूल्स है। इस एनालिसिस को करने के लिए मेरे पास दो टूल्स हैं, एक है फंडामेंटल, एक है टेक्निकल, ठीक है। सो दैट आपका फ्रेमवर्क बनता चला जाए माइंड में कि जब भी आप सिक्योरिटीज को डील कर रहे हैं, आपको इन दोनों से बाहर कहीं नहीं जाना। देयर इज नो अदर tool to do some analysis. Either there is going to be fundamental analysis or there is going to be technical analysis. There is no third analysis. आपको ये समझना है कि हमने फंडामेंटल तो समझ लिया कि फंडामेंटल में हम कंपनी के बारे में जानते हैं, हम उसके इनसाइड और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है जो प्राइस है वो अपसाइड जाएगा डाउन साइड जाएगा। अब हम समझेंगे कि दूसरा जो टूल है मेरा टेक्निकल एनालिसिस का, वो आपको क्या बताएगा, ठीक है। सो एक एनालिसिस से तो हमें 50% चीज यहाँ पे समझ में आ गई, वेदर द प्राइस इज गोइंग टू गो अपसाइड और डाउन साइड। ओके, सो अब हमें ये समझ में आ गया फंडामेंटल क्या होता है। अब हम ये समझेंगे सर कि टेक्निकल क्या होता है, ठीक है ना। सो जो टेक्निकल एनालिसिस होता है हमारा, तो छोड़ लो। सो जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द assumptions that all the information that can affect the performance of the price of the financial instruments such as company fundamentals, economic factors, market sentiments, tweets, political events, economic events are already reflected in the prices. यानी कि एक चीज ये समझिए, फॉर एग्जांपल अभी एक कंपनी है XYZ, उसका अगर मैं अभी के अभी शेयर खरीदना चाहूँ, ठीक है ना, वो 100 रुपए का है, ठीक है, वो जो कंपनी का प्राइस, जो कंपनी का शेयर है वो 100 रुपए का है। अब एक ये बात बताइए, ये जो 100 रुपए सेट हुआ है,
क्या ये बायर्स और सेलर्स ने आपस में नेगोशिएट करके सेट किया है? कि कोई भी आप जब कंपनी का प्राइसेस देखते हैं अपसाइड या डाउनसाइड जा रहा होता है, या कोई भी अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से बैंक निफ्टी हमारा 36,000 पे, ठीक है, सो आई विल बी टॉकिंग मच मोर अबाउट बैंक निफ्टी नाउ। सो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है, ठीक है ना, लेट्स से द बैंक निफ्टी द प्राइस ऑफ द बैंक निफ्टी इज राइट नाउ 36,000, ठीक है। तो इस प्राइस में क्या वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिलफुल नहीं होगी? जो बायर्स और सेलर्स मेरे एग्री हुए हैं, ठीक है ना, कि जो सेलर है वो भी 36,000 पे बेचने को रेडी है, और बायर जो है वो 36,000 पे खरीदने को रेडी है, ठीक है। तो दोनों के, बायर और सेलर के माइंड में ऑलरेडी सारे फंडामेंटल्स इंक्लूडेड होंगे, तभी तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मेरा जो बैंक निफ्टी है वो 36,000 पे ट्रेड होना चाहिए। ओके, जस्ट लेट मी रिपीट वन टाइम, ओके, वंस अगेन। ओके, ये बैंक निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट है, ठीक है ना। हम इसके बारे में समझेंगे कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज कर सकते हैं, बट अभी जो मेरा पॉइंट है आप उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है वो मुझे क्या बता रहा है, जो मेरा करंट प्राइस है, अगर आप प्राइस लाइन देखेंगे वो 36,230 पे चल रही है, जो मेरा करंट प्राइस है। लेट्स से करंट प्राइस लाइन जो ग्रीन वाली लाइन है वो मेरा करंट प्राइस लाइन है, ठीक है। 36,230 इज माई करंट प्राइस लाइन। तो जो 36,230 है वो मेरा करंट प्राइस चल रहा है। ओके, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो प्राइस एंड हुआ है मार्केट में, जो करंट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे हमारे कुछ बायर्स भी हैं और यहाँ पे हमारे कुछ सेलर्स भी हैं, ठीक है। बोथ आर प्रेजेंट इन द मार्केट, जस्ट टेल मी यस और नो। इस प्राइस पे मेरे बायर्स और सेलर्स दोनों प्रेजेंट हैं। अगर मुझे अभी के अभी बैंक निफ्टी खरीदना है तो क्या मैं 36,230 रुपए का खरीद सकता हूँ? कैन आई बाय इट फॉर 36,230 राइट नाउ? और इफ आई वांट टू सेल माय बैंक निफ्टी, कैन आई डू इट एट राइट दिस प्राइस? यस और नो? Yes. So every one of you get this understanding that the current price of the market is that the price is 230 right now. If the price is 36,230, can I say all my fundamental factors that has been right now in the market, क्या वो सारे के सारे फंडामेंटल फैक्टर्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे बायर्स और सेलर्स के माइंड में? जो बायर है और जो मेरा सेलर है उन दोनों के माइंड में सारे फंडामेंटल फैक्टर्स इंक्लूडेड होंगे, तभी वो इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें 36,230 पे ही डील करना है बैंक निफ्टी को। क्यों मेरा प्राइस जो है वो 35,000 नहीं है? अगर मैं अपने प्राइस बैंक निफ्टी को 35,000 पे खरीदना चाहूँ तो क्या मैं खरीद सकता हूँ? मैं नहीं खरीद सकता, ओके, बिकॉज माई प्राइस इज राइट नाउ 36,230। सो दैट मीन्स ऑल द फंडामेंटल फैक्टर्स, ठीक है ना, जो बैंक निफ्टी को अफेक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो टेक्निकल एनालिस्ट जो चार्टिस्ट होते हैं, जो आपने कई सारे ट्रेडर्स को देखा होगा स्पेंड ऑल ऑफ द टाइम द चार्ट्स, क्या आप ये समझ रहे हैं कि वो टेक्निकल एनालिसिस जो यूज कर रहा है वो किस बेसिस पे कर रहा है? ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस जब हम यूज कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि प्राइस के बायर्स या सेलर्स को पहले ही पता है सारे फंडामेंटल फैक्टर्स जो है ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके हैं, और उस वजह से वो इस नतीजे में पहुंचे दैट दे हैव डिराइव्ड देमसेल्फ टू अ प्राइस ऑफ 36,230। Okay, so I think that this is being a little bit difficult for you, but you will get the top notch of it. एक बार आपका आपने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई लैंग्वेज सुनी, एंड दैट इज व्हाई इट माइट बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द एडवांस स्टफ, मोस्ट एडवांस स्टफ दैट यू कैन एवर हियर फ्रॉम एनी ट्रेनर। ओके, अगर आप इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझ गए, जो मेरे करंट प्राइसेस है वो मेरे सारे फंडामेंटल और सारे फंडामेंटल फैक्टर्स को इंक्लूड करके है, ठीक है, तब आप अपनी जो ट्रेडिंग है और इन्वेस्टिंग है उसको बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जा पाएंगे। अभी हम थोड़ा सा फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस है, आप आई होप आप लोगों को अब समझ में आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस पहली बार जो यूज कर रहा है उसके माइंड में क्या एजम्पशन चल रही है, ठीक है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज करेंगे तो आपके माइंड में ऑलरेडी एजम्पशन है कि जो भी मेरे फंडामेंटल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं मार्केट के प्राइस को वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। तो उसमें मुझे करना क्या है फिर? अब टेक्निकल एनालिसिस मैं कर क्या, उसमें मैं कर क्या रहा हूँ, द डायरेक्शन ऑफ द प्राइसेस थ्रू द स्टडी ऑफ पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स एंड हिस्टोरिकल प्राइस, हिस्टोरिकल मार्केट डेटा, प्राइस एंड वॉल्यूम। तो प्राइस और वॉल्यूम को यूज करते हुए हम ये समझेंगे जो मेरा प्राइस का नेक्स्ट मूव आएगा, ठीक है ना। अभी आपने देखा जो प्राइसेस है मेरे वो कुछ इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है, जो मेरे प्राइसेस है वो कुछ इस तरह से चल रहे हैं। हम जब टेक्निकल एनालिसिस का यूज करेंगे हम ये समझेंगे मेरा प्राइस जो है वो इस लेवल से किस तरफ जाएगा, वो अपसाइड जाएगा या वो डाउन साइड जाएगा, ठीक है। Technicians sometimes also called as chartists believe that the market activity will generate indicators in price trends that can be used to forecast of the direction and the magnitude of the price movements in the future। तो हम यहाँ पे सिंपल तरीके से आपने अब ये तो समझ लिया कि सर जो अप ट्रेंड प्राइस जो है वो अपसाइड जाएगा डाउन साइड जाएगा, हमें फंडामेंटल एनालिसिस ही बता दिया। अब जो सेकंड टाइप ऑफ टूल है वो हमारा है टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि अगर टेक्निकल एनालिसिस भी ये कंफर्म कर रहा है कि मेरा जो प्राइस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर अब मैं अपना पैसा मार्केट में लगाऊंगा तो क्या वो कम रिस्क पे होगा या क्या वो ज्यादा रिस्क पे होगा? सो आई होप आप सबको समझ आ गया, बिकॉज सबका आंसर सेम ही है, विच इज लेस रिस्क। नाउ दिस इज द पावर ऑफ गेटिंग प्रॉपरली ट्रेन।
अगर आपके सबके आंसर सेम है तभी आप मार्केट में पैसे कमाओगे, बिकॉज सबको अंडरस्टैंड हो रही है ये चीज कि अगर मेरा मार्केट में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस ये बोल रहा है कि प्राइस जो है मेरा अपसाइड पे है, एंड देन आई एम बाइंग द शेयर या आई एम बाइंग द बैंक निफ्टी और एनी सिक्योरिटी, नाउ माई मनी विल बी एट लो रिस्क, बिकॉज वहां से मेरा अपसाइड जो भी मेरा एक प्राइस का मूवमेंट है मेरी फेवरेबल डायरेक्शन में वो जाना ज्यादा प्रोबेबल है। ठीक है, बहुत उसके बाद कम चांस हो सकता है ऐसा कि उसके बाद भी प्राइस जो है मेरा अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा कि टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस चार्ट्स को यूज करेंगे, फंडामेंटल में हम इंटरनल फैक्टर्स को यूज करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स को यूज करेंगे, और उन दोनों के बेसिस पे हम अपना एक परसेप्शन निकालेंगे माइंड में कि वेदर द प्राइस इज गोइंग टू गो अप और डाउन, और उसके बाद हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर प्राइस अपसाइड जा रहा है तो हम बाइंग करेंगे, अगर प्राइस डाउनसाइड जा रहा है तो हम सेल करेंगे। क्लियर? लवी शो कैसे होगा उसको हम फ्यूचर में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको फ्रेमवर्क समझ में आ गया माइंड में डिसीजन कैसे लेना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। पहली बात, अगर मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैं सुबह 9 बजे स्टॉक मार्केट मेरी ओपन हुई है एंड आई एम आई हैव ओपन माय ट्रेडिंग अकाउंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू नो कि मुझे करना क्या है, मेरी जॉब क्या है। बिफोर टेकिंग अ बाइंग और सेलिंग ऑर्डर आई नीड टू नो फर्स्ट माई सेल्फ कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। तो मुझे समझ में आया मुझे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने हैं। फंडामेंटल के लिए मैं न्यूज को यूज करूंगा और टेक्निकल के लिए मैं अपने प्राइस चार्ट को यूज करूंगा जो हमने अभी देखे प्रैक्टिकली। क्या आपको यहां तक सब क्लियर है कि हमें करना क्या है सुबह उठ के? करना कैसे, दैट्स द क्वेश्चन, आई नो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहीं पे छोड़ दूंगा, पहले आप ये समझो कि आपको करना क्या है। टेक्निकल एंड फंडामेंटल, एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग, यस और नो? ठीक है, चाहे आप कोई भी सिक्योरिटी ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप करेंसी ट्रेड करते हो, चाहे आप यू नो क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते हो, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द मार्केट। यू आर गोइंग टू एक्चुअली फर्स्ट यूज द फंडामेंटल एनालिसिस एंड देन यू आर गोइंग टू यूज द टेक्निकल एनालिसिस। सो आई होप आप यहाँ पे आपको क्लियर है कि हम अपना एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम अपने एनालिसिस के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं वेदर आई एम गोइंग टू गो अपवर्ड और डाउन। ठीक है, अब हम ये समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है ना, सब बोलते हैं मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, मुझे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। स्टॉक मार्केट क्या है? मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक छोटा सा चीज आपको बताता हूँ। स्टॉक मार्केट जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी एक वेजिटेबल मार्केट होती है, अगर आपको कुछ वेजिटेबल्स को बाय करना है, ठीक है ना, आपको कैरेट बाय करनी है, आपको कोई भी वेजिटेबल बाय करनी है, तो आप मुझे बताइए क्या आप किस वेंडर के पास जाएंगे या आप कौन सी मार्केट में जाएंगे? आप वेजिटेबल मार्केट में जाएंगे या फर्नीचर मार्केट में जाएंगे? क्या आप वेजिटेबल खरीदने के लिए फर्नीचर मार्केट में जा सकते हैं? No, right? So if you want to buy vegetables, you have to go to the vegetable market. Similarly, if you want to invest in some stock, अगर आप कुछ स्टॉक खरीदना चाहते हैं, आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, या बैंक निफ्टी का इंडेक्स खरीदना चाहते हैं, या आप कुछ भी सिक्योरिटी डील करना चाहते हैं, आप उसकी सेम मार्केट में जाएंगे। सिमिलरली जो शेयर्स होते हैं उनको हम स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है ना, उनका दूसरा नाम होता है स्टॉक। तो अगर हमें स्टॉक खरीदना है या हमें शेयर खरीदना है तो हम शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में जाएंगे। इतना क्लियर है? एक बात बताइए, वेजिटेबल का हमने एग्जांपल क्यों लिया था? क्योंकि हमने जब वेजिटेबल खरीदनी है तो सेम वेजिटेबल का सेलर होना चाहिए, तभी तो हम बाइंग करेंगे, राइट? जो बायर और सेलर है अगर वो दोनों वेजिटेबल खरीदने आए तभी तो वेजिटेबल मार्केट में एंटर करेंगे। सिमिलरली अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं, स्टॉक मार्केट की या किसी भी मार्केट की बात करूं, तो जो मेरे सिमिलर बायर्स और सेलर्स हैं, जो सेलर है मेरे शेयर्स का और जो बायर है शेयर्स का, वो दोनों एक साथ मिलेंगे तभी तो एक मार्केट को क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जहां पे बायर्स और सेलर्स एक साथ आते हैं, कहाँ के शेयर मार्केट जो स्टॉक को सेल या बाय सेल करना चाहते हैं। So the market in which securities are issued, purchased and investors by investors and subsequently transferred among investors. तो एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज आपस में सेल या बाय या सेल करता है। ठीक है, इतनी छोटी चीज को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं कि जहां पर हम कोई जो भी बायर और सेलर है, अगर वो स्टॉक को सेल या बाय करने आया तो इट हैज टू ही हैज और शी हैज टू गो टू द स्टॉक मार्केट टू डू द ट्रांजेक्शन। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट। हम ये समझते हैं कि मार्केट में इतने सारे लोग हैं तो हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। यानी कि जब मैं अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो वहां पे हमें ये भी तो समझ में आना चाहिए, हमें ये तो समझ में आ गया कि सर हमें करना क्या, हमें एनालिसिस करना था, हमें फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करना है, बट हमें ये समझना है कि हमारे सामने कौन से और लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में। फर्स्ट इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन? जो अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहता है। ओके, जो अपना मनी इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि अगर आप अपना सोर्स में डीमैट अकाउंट खोलते हैं, मुझे शेयर बाय करना है, मुझे शेयर सेल करना है, तो आप कौन है? आप इन्वेस्टर हैं। दैट पर्सन हु इन्वेस्ट हिज और हर मनी or capital to buy financial securities with the aim of profiting out of the same due to increased value। ठीक है, सेकंड कौन होता है? सेकंड होता है borrowers और seekers of fund। borrowers और seekers of fund यानी कि अगर आप ये समझिए, आपने किसी कंपनी का शेयर जो है वो बाय करा है, ठीक है ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपने किसी कंपनी का शेयर बाय करा है, तो बेसिकली ये शेयर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं ये शेयर क्या है, किसी कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल XYZ एक लिमिटेड कंपनी है,
ठीक है, इसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, 50 लाख का पूरा बिजनेस चल रहा है। इसको एक नई रिक्वायरमेंट आई कि इन्हें एक नया प्रोजेक्ट मिला 1 करोड़ का। ठीक है, मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ जो बिकॉज आपको मेन जो चीज समझनी है दैट इज अबाउट द फंडामेंटल टेक्निकल। सो मैं आपको छोटा सा फ्रेमवर्क दे रहा हूँ माइंड में, हाउ द शेयर, व्हाट इज शेयर एक्चुअली एंड हाउ द शेयर्स आर प्राइस। ठीक है, सो XYZ एक लिमिटेड कंपनी थी, उसको 50 लाख रुपीज की उसकी नेटवर्थ है। ठीक है, उसकी 50 लाख रुपीज की नेटवर्थ थी, बट रिसेंटली उसके पास एक प्रोजेक्ट आया आज 1 करोड़ का। सो द कंपनी हैज टू हैव सम 1 करोड़ रुपीज टू इन्वेस्ट इनटू दैट प्रोजेक्ट। यस और नो? कंपनी को 1 करोड़ रुपया चाहिए उसको इन्वेस्ट करने के लिए, जो भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है या उसके पास जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। सो ये 1 करोड़ रुपए जब वो पब्लिक से लेती है, ठीक है ना, कि अब वो पब्लिक को बोलती है कि आप हमें 1 करोड़ रुपए दो, हम आपको बदले इसके कुछ अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे। ठीक है ना, यानी कि हम अपनी कंपनी में आपको ओनरशिप देंगे, उसे शेयर होगा। सो जो सेकंड हमारा पार्टिसिपेंट होता है हमारा स्टॉक मार्केट का, वो होता है बोरोज और सीकर्स ऑफ फंड्स। जो भी जो भी अपना कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, तो वो हमेशा बोरो या फंड को सीख करते हैं वाया हेल्प ऑफ इशूइंग द शेयर्स। ठीक है ना, तो हम ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि क्या हमारी प्राइमरी मार्केट होती है, किस तरह से शेयर को बेसिकली फ्लोट किया जाता है मार्केट में। ठीक है, सो फर्स्ट हो गया हमारा इन्वेस्टर, जो हम फॉर एग्जांपल हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में। सेकंड हो गया बोरोवर जो सीकर ऑफ फंड्स। थर्ड हो गया इंटरमीडिएरीज। ये ट्रांजेक्शन को फुलफिल कराने के लिए, ठीक है ना, कि जो मार्केट ने इनको एक कंपनी को 1 करोड़ रुपए दिया, उस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के शेयर्स आपको दिए, ये ट्रांजेक्शन को, ठीक है ना, कंप्लीट करने के लिए एक इंटरमीडिएरी होता है मार्केट में। ठीक है ना, जिसे बिचौलिया भी बोलते हैं। इंटरमीडिएरीज बेसिकली जो हमारे ये ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए बिचौली होते हैं। ठीक है ना, इन द सेंस बीच में जो बंदे आते हैं एंड देन दे हेल्प इन ट्रांजेक्टिंग ऑफ द फंड। सो आपका जो ब्रोकर है, यानी कि आप जो कभी भी शेयर खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आपको रिलायंस का जो शेयर खरीदना है, वो कहां से खरीदेंगे? आप अपने डीमैट अकाउंट से खरीदेंगे, राइट? वो डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के पास खुला होगा। ठीक है, सो ब्रोकर बेसिकली आपके बिहाफ पे वो सिक्योरिटीज बाय करेगा कंपनी को, और वो जो पैसा है वो दूसरे जो भी बोरोवर सीकर होगा उसके पास जाएगा। ठीक है, इन तीनों को, ठीक है ना, सो ये हमारा समझ में आ गया कि जो स्टॉक मार्केट है वो इन्वेस्टर से बनी है, सेकंड हमारे बोरोज सीकर्स ऑफ फंड से बनी है, एंड थर्ड इन दोनों को जो बेसिकली ट्रांजेक्शन कराता है वो इंटरमीडिएट है, और इन तीनों को जो रेगुलेट करता है वो है एक रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि सेबी। तो हमारी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है हमारे गवर्नमेंट का, ठीक है ना, दैट हेल्प्स इन सेफ गार्डिंग योर मनी। ठीक है ना, जो जैसे आपने पुराने स्टॉक मार्केट के स्कैम्स के अबाउट मूवीज भी देखे होंगे, और देखे होंगे बहुत सारे स्कैम्स वो होते हैं, स्कैम्स होते हैं। ये स्कैम्स ना हो, आपके पैसे जो किसी कंपनी, कोई डिफॉल्टर कंपनी हो या कोई स्कैम आपको स्कैम ना करना चाहते हो, एक हॉक्स कंपनी बना के, फ्रॉड कंपनी बना के, तो ये सब चीजें ध्यान कौन रखता है? आपके लिए सेबी रखता है। So SEBI is the one who is going to actually take care of the regulations on the market so that your money is protected. ठीक है, एंड पनिश द फॉल्टर्स ऑफ द मार्केट। जो भी मार्केट में अगर कुछ भी मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहीं आपने सुना होगा इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग फ्रॉड करना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को, उनको प्यूनिटिव एक्शंस कौन देता है? सेबी देता है। सो दीज आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट दैट यू कैन अंडरस्टैंड, कि अगर आप मार्केट में डील कर रहे हैं तो आपके साथ साथ सहपाठी कौन है, आपके आपके कोलीग्स कौन है, आपके उस मार्केट में बेसिकली आप किसके साथ डील करने वाले। ठीक है, सबको याद है? क्लियर? सो जैसे कि मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ शेयर, अगर हम शेयर के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं, ठीक है, क्लास आई नो पीपल दैट दिस इज गेटिंग वेरी मच बेसिक फॉर टुडे। हम एक जनरलाइजिंग कर रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जब मैं अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू करता हूँ, आपको पता है हमारी जो स्पीड बढ़ेगी ना, तो हम फंडामेंटल टेक्निकल सब चीजें समझेंगे, बट उसको किस चीज से रिलेट करना है हमें वो समझने के लिए एक थोड़ा सा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना समझना पड़ता है। ठीक है, सो ये जो सारे जनरल पॉइंट्स हैं, मैं नहीं कहता आपको पता नहीं होंगे, आपको पता भी तो अच्छी बात है, एक रिवीजन हो रहा है, बट जब मैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पे आऊंगा, मैं इन्हीं सब चीजों से कनेक्ट करना शुरू कर दूंगा। सो आई होप कि अपना जो फोकस है उसे थोड़ी देर और जमा के बैठिए। सो व्हाट इज अ शेयर? अगर हम शेयर के बारे में समझना चाहते हैं, सो शेयर क्या है? अभी हमने आपको समझाया था कि जब भी कोई कंपनी जो है बेसिकली कैपिटल को सीख कर रही है, लेट्स से उसके पास 1 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट था, ठीक है ना, बट 1 करोड़ रुपए उसके पास खुद के पास नहीं है। सो व्हाट द कंपनी डू, दैट द कंपनी केम इनटू द स्टॉक मार्केट, और उसने इन्वेस्टर्स को बोला कि प्लीज गिव मी 1 करोड़ रुपीज, ठीक है ना, आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, एंड इसके बदले में आपको ओनरशिप दूंगा अपनी कंपनी की, बिकॉज 1 करोड़ को जब वो इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना, जब भी वो किसी प्रोजेक्ट में लगा रही है, फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी है, वो अपने किसी प्रोजेक्ट में लगा रही है, तो उससे कुछ प्रॉफिट होगा। तो हमारा फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ ऑन 1 करोड़ रुपीज, तो ये 10 लाख का प्रॉफिट जितना आपने शेयर्स को सब्सक्राइब किया होगा, वही 10 लाख के प्रॉफिट्स आपको भी मिल जाएंगे। तो यानी कि इन्वेस्टर से क्या सीख किया जा रहा है? इन्वेस्टर से कैपिटल सीख किया जा रहा है, मनी सीख किया जा रहा है, एंड अगेंस्ट विच दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर प्रॉफिट्स टू यू एज वेल। तो जो आपको डिविडेंड्स आते हैं, ठीक है ना, जो आपको आपका जो शेयर प्राइस बढ़ता है, वो बेसिकली आपके क्या है? द प्रॉफिट्स है कंपनी के, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स।
तो आई होप आपको यहाँ तक शेयर समझ में आया होगा। शेयर क्यों इशू करती है मार्केट कंपनी में? जब भी किसी कंपनी को कुछ फंड्स की जरूरत होती है अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपना एक कोई नई अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाने के लिए, दैट कंपनी कम्स इनटू द स्टॉक मार्केट टू आस्क इन्वेस्टर्स देयर मनी सो दैट इन रिटर्न दे कैन गिव सम प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। सो जो जोमेटो है, बेसिकली जोमेटो ने जब आईपीओ निकाला था, वो क्यों निकाला था? अपने प्रॉफिट जो बेसिकली, क्योंकि जोमेटो के पास सेल्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उसको एक्सपेंशन करने के लिए और ज्यादा रिक्वायरमेंट थी फंड्स की। तो जब भी आपके फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो जोमेटो ने क्या करा, जोमेटो ने अपना आईपीओ जो है निकाला मार्केट में, और आईपीओ के बेसिस पे उसने इन्वेस्टर्स से रिक्वेस्ट करा, प्लीज डू सब्सक्राइब इन माय आईपीओ, यानी कि आप मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट दीजिए, ठीक है ना, और मैं आपको अपनी कंपनी की ओनरशिप दूंगा। एंड उस ओनरशिप की वजह से जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे उसमें आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट अ शेयर इज, एंड दैट इज व्हाई वी एक्चुअली इन्वेस्ट इन शेयर्स। ओके, यहां तक आपको आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट अभी हमने यही पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट में हम एक छोटी सी चीज यही समझेंगे, एक होती है प्राइमरी मार्केट, होती है एक सेकेंडरी मार्केट। कोई जानता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या फर्क है? एनीबडी हु नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट? ओके, गुड। सो जब भी कंपनी पहली बार मार्केट में आती है, ठीक है ना, लेट्स से जोमेटो का एग्जांपल ले रहे हैं, जब भी कंपनी पहली बार मार्केट में आती है, पेटीएम का भी एग्जांपल ले मार्केट में, ठीक है, जब भी कंपनी पहली बार मार्केट में आती है अपने इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट करने के लिए फंड्स के लिए, तो वो प्राइमरी मार्केट में आती है, ठीक है ना, तो हम उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट वो होती है जहां पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी जो है लिस्टेड शेयर जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, जो कंपनी ऑलरेडी आईपीओ निकाल चुकी है उनके शेयर्स जो है लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप खरीद पाते हैं शेयर्स को। तो सेकेंडरी मार्केट वहां होती है जहां आप किसी इन्वेस्टर से, दूसरे इन्वेस्टर से उसके शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टर इन्वेस्टर ट्रांजेक्शन होती है। सो जब प्राइमरी मार्केट ये है कि यानी कि पहली बार जोमेटो जब मार्केट में आया था उसने आईपीओ इशू करा था, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू करा था। उसने इन्वेस्टर्स को बोला था कि मुझे आपका फंड चाहिए और आप मेरी ओनरशिप ले सकते हैं, नहीं शेयर्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो डील कर रहे हैं किसके साथ? कंपनी के साथ। बट सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है डील कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ। यानी कि अगर आप रिलायंस का शेयर फॉर एग्जाम्पल बाय करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप रिलायंस का शेयर बाय करना चाहते हैं तो आप अब रिलायंस से डील नहीं करेंगे, आप किसी और इन्वेस्टर से डील करेंगे जिसके पास ऑलरेडी रिलायंस का शेयर है, तो वो वहां पे सेलिंग करेगा और आप यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है गाइस, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जब हम टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे तो आपको समझ में आएगा डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या होती है। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि डिमांड जोन से हमारा जो है वहीं से हमें बाइंग करनी होती है और सप्लाई जोन से हमें सेलिंग करनी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरह से अमेलगमेट करेंगे, ये सब चीजें आपको आगे आने वाली क्लासेस में समझ में आ जाएगी। सो प्लीज डू फोकस। आई नो दैट मोस्ट ऑफ पीपल आर लूजिंग देयर फोकस, बट डू ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत छोटे आपको बेसिक्स लगेंगे, बट इन्हीं बेसिक्स में आपके प्रॉफिट छुपे हैं मार्केट में। ओके, सो जब भी मैं पहली बार जब भी मैं कंपनी से डील कर रहा हूँ मार्केट में पहली बार, दैट इन्वेस्टर्स आर डीलिंग विद द कंपनी, वो हमारी प्राइमरी मार्केट में होगा। अगर ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी को किसी को बाय या सेल करना है तो वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजेक्शन होती है और वहां पे हम सेकेंडरी मार्केट में डील करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं और वहां पे अपना शेयर बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए ऑर्डर डालते हैं, तो आप दूसरे इन्वेस्टर से, यानी कि जो इन्वेस्टर सेल कर रहा है उसके बिहार पे ऑर्डर डाल रहे हैं, वहां उससे परचेज कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजेक्शन हो रहा है और यहाँ पे मेरा कंपनी टू इन्वेस्टर ट्रांजेक्शन हो रहा है। बस इतना सा फर्क है प्राइमरी मार्केट में। सो मेजरली जो भी आप डीलिंग करेंगे वो सारी की सारी सेकेंडरी मार्केट में करेंगे। ओके, सो प्राइमरी मार्केट एक इस्टेब्लिशमेंट है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर और बायर्स के लिए, आईपीओ निकालने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने समझ चुके हैं जो प्राइमरी मार्केट्स होती है वो हम आईपीओ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी मार्केट्स होती हैं उसको हम ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। तो जो भी आपका सारा का सारा काम रहेगा वो ट्रेडिंग मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में रहेगा। जो भी आप ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, वो आप सब सेकेंडरी मार्केट से करेंगे। इज वेयर द इन्वेस्टर्स बाय और सेल सिक्योरिटीज दे ऑलरेडी ओन। ठीक है, जो भी आप ऑलरेडी ओन करके बैठे हैं वो आप बाय और सेल कर सकते हैं। So transactions on the secondary market are termed as secondary simply because they are one step removed. तो यानी कि कंपनी और इन्वेस्टर का जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ से डिलीट हो जाता है और इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर का जो रिलेशन है वो आपस में बन जाता है। सो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैं अपना जो सेशन है वो एंड कर रहा हूँ। हम यहाँ पे कल फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बातें करने वाले हैं एंड आई होप कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और सब अटेंड करें। आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा, कल से और मजा आने वाला है। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। आई एम पारस गोयल, so let's call it a day and good night people.